क्या होता है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज बी, दिस इज ए एक्सिस, दिस is C axis. Okay, so suppose a face lying something like this, which is in 1 unit distance. Okay, so this face will be, I think you all know because आप लोगों ने already menology का क्लास किया होगा, किस लेवल क्लास हो गया होगा ऑनर्स में। तो this plane is called 1 0. We will come into this, so this will be 0 1 0, right? So similarly, suppose its distance is 0 2 0. Okay, and this distance, because we are calculating distance from this, right? This from this center, this is O, so it would be 0 3 0. So the interplanar spacing is nothing but the distance between these two faces. Again, distance between these two faces. Okay, so this is called interplanar spacing. That's why I'm written spacing between two adjacent faces. So these are the adjacent face. Okay, so this distance is called interplanar spacing. Clear? We will denote this as DHKL. We will note we use this notation to indicate interplanar spacing. Fine. Now the challenge is for different system, interplanar system calculation will be different. Okay, so I am writing the formulas to calculate interplanar spacing for different systems. Just note it down. So for cubic system, starting with cubic system, the 1 by d squared HKL, why DHKL is the interplanar spacing, can be calculated using this formula, h square plus k square plus L square by, ठीक है, ओके। अभी न्यूमेरिकल्स कैसे दे सकता है कि सपोज आपको बता दिया कि फेस 1 0 0, ठीक है, this is the face of a cube whose unit length of axis is 1 centimeter. So what will be the spacing? So I will calculate this. So 1 by d square HKL equals to 1. H value is 1 and K and L is 0. So we can 0 plus 0 by, I have said the unit length of the cube is 1 centimeter, which is denoted as A. So it will be 1 square. So 1 by 1, it will be 1. So DHKL, d square HKL will be 1. So DHKL will be 1 as well, right? Root over 1, so it will be 1. है ना? ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। हम लोग अभी आई डोंट नो कि मेरे पास ऐसा न्यूमेरिकल कुछ है या नहीं। आई विल ट्राई टू पुट इट, अदरवाइज जो टेस्ट लेंगे उसमें तो ऐसा न्यूमेरिकल्स दे ही देंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला। So this is only for cubic. Now we'll go to the tetragonal. अगर आपको tetragonal system देता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? Just note it down. 1 by d square HKL equals to h square plus k square by a square plus 1 by c square. Okay, you all know कि a equals to b not equals to c. So that's why हम लोग उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे आ जाते हैं। बाद में देखना तो आपको याद में आ जाए, समझ में आ जाए कि क्यों ऐसा होता है फॉर्मूला, ठीक है। नाउ ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक का क्या पता है हम लोग को? a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, मतलब कैसा आना चाहिए? h स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर। सो इट विल बी d स्क्वायर hkl इक्वल टू a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, दैट्स इट। अभी बाकी जो होता है ना सिस्टम, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, दैट्स व्हाई मैंने उसको इधर ऐड नहीं किया, ठीक है। जैसे 3 सिस्टम याद रखो, आई थिंक जैम में इससे हार्ड नहीं आएगा जस्ट, बट ये तीनों से क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम क्वेश्चन सपोज आपको दे दिया कि 1 1 1 एक फेस है and it belongs to orthorhombic system whose unit length along a axis is 1 centimeter, along b axis is 2 centimeter, along c axis is 3 centimeter। फिर उसका इंटरफेशियल स्पेसिंग कितना होगा बताओ, ठीक है। तो इंटरफेशियल एंगल इज नथिंग बट बिटवीन द एंगल, सपोज को 1 1 1 दे दिया, मतलब 1 1 1, नेक्स्ट फेस शुड बी 2 2 2, नेक्स्ट फेस शुड बी 3 3 3, राइट। तो इसका बिटवीन का तो एंगल है, सॉरी जो डिस्टेंस है और जो स्पेसिंग है वो हम लोग इधर निकलना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इंटरफेशियल डिस्टेंस। ओके, दिस मोर कॉम्प्लेक्स हम लोग मेनली एक्सआरटी के टाइम पे ऐसा यूज करते हैं,
ठीक है। IIT बॉम्बे में तो ऐसा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमारे मिनरोलॉजी क्लास में, XRD वगैरह, तब या फिर जो ब्रैग्स लॉ भी हम लोग आएंगे इसके बाद, तो उसमें ऐसा भी यूज होता है, ठीक है, कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, यू लेट यू नो, बट आई डोंट थिंक कि वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई मैं वो भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको कैसे उसको टैकल करना होगा, ठीक है। तो 1 1 1 दे दिया, 1 2 3 आपको दे दिया, और ऑर्थोरम्बिक सेट सिस्टम आपको बता दिया, सो इट विल बी एज सिंपल एज दैट। आई थिंक एवरीवन कैन आंसर नाउ। ए स्केल इक्वल टू एच स्केल आपको पता है कि 1 + 1 + 1, सॉरी 1 बाई ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 बाई बी स्क्वायर हो गया 4, राइट, 2 स्क्वायर मीन्स 4, एंड एल विल बी 1 बाई सी इज 9, राइट। सो इसको कैलकुलेट कर लो, फिर डी स्क्वायर एच स्केल निकल जाएगा, तो उधर से आप डी एच स्केल भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। Now, if it is clear, then we'll move to the Bragg's law. I think बहुत लोगों ने सुना होगा. It's very important for XRD, X-ray diffraction, and it's very important for this time for JAM. Okay, क्योंकि अभी IIT बॉम्बे क्वेश्चन कर रहे हैं, and this is GMT says favorite question. ठीक है, बहुत बार ये सब किया है और ऐसा क्वेश्चन अभी आ सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली क्योंकि IIT बॉम्बे is the leading institute this time. Okay. So Bragg's law is nothing but n lambda equals to 2d sine theta. Okay, what is lambda? Lambda is wavelength. ठीक है, d is the what is called interplanar spacing, जो हम लोग इतना टाइम तक जो dh के लिए, this is this d. Okay, interplanar spacing, and theta is called incident angle. Okay. नाउ द क्वेश्चन इज, भैया कैसा क्वेश्चन आएगा, तो आपने तो बता दिया ब्रैग्स लॉ, बट क्वेश्चन कैसा आएगा, तो नाउ राइट अ क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई एन एक्सरे, जैसे कि मैंने बताया कि इट्स मेनली यूज फॉर XRD, एंड IIT बॉम्बे में तो बहुत बार ये सब किया जाता है, उसमें एक टॉपिक होता है XRD करके, ठीक है, एक पूरा सेमेस्टर हम लोग उसमें पढ़ते हैं. Okay, so an X-ray beam of wavelength lambda equals to 1.541 angstrom, okay, is incident on a cubic crystal having lattice spacing of 4 angstrom. Okay, what will be its 2 theta value, okay, where theta you all know कि theta is the incident angle or also called glancing angle on X-ray, on XRD means X-ray diffractometer. Okay, so anyone wants to try कि कैसे करेंगे, ठीक है, आई थिंक कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है, जस्ट बता दो, जस्ट सिंपल, राइट, मैं क्यों बताना चाहूँ, मैं ही बता देता हूँ, इट्स वेरी सिंपल कि एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा. जब आपको ऐसे दिखेगा कि व्हाट विल बी इट्स थीटा वैल्यू, आपको लैम्डा दिया होगा, लैटिस स्पेसिंग इज दिया होगा, तो जस्ट सिंपल ये फॉर्मूला आपको याद में रखना पड़ेगा. इट्स नथिंग like complex, right, very simple. So n is nothing but an integer, so you can ignore this term, okay, because lambda is already provided, so 1.541 is given as lambda equals to 2, d means lattice spacing or the interplanar spacing, 2 into 4 sin theta, right. So इधर से आप लोग इजिली थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, 1.541 by 8 sin inverse. So it will be the value of theta. अगर आपको थीटा पता चल गया, so you can easily calculate 2 theta. जो थीटा का वैल्यू सपोज x आया, तो you can multiply this x with 2. So 2 theta will be 2x, right? As simple as that. Very simple, है ना? Fine. ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, और भी कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल आता है इसमें. डी का लाइक आपको थीटा पूछा होगा, बट आपको अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, भैया 2 थीटा का वैल्यू क्यों जरूरत है, लाइक थीटा से ही तो काम हो जाता है, बट व्हाई वी आर यूजिंग 2 थीटा, बट व्हाई दे आर आस्किंग अस टू प्रोवाइड 2 थीटा वैल्यूज. हम लोग तो थीटा ही कैलकुलेट कर सकते हैं, why they are not asking for 3 theta 4 theta only for 2 theta. So ये सब एक साइड अगर जब थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अभी के लिए छोड़ो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि 2 theta क्यों आएगा, ठीक है. दिस इज अ थियोरिटिकल पोर्शन, वी विल लुक इनटू इट लेटर.
ओके फाइन. सो नाउ अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि यूनिट सेल ऑफ an orthorhombic mineral was compressed during deformation from 5 angstrom to 4.5 angstrom, okay, along C axis with the other two dimension remaining unaffected. मीन्स सिर्फ सी एक्सिस का डिफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम 5 एंगस्ट्रॉम टू 4.5 एंगस्ट्रॉम, बट बाकी जो एक्सिस है ए एंड बी एक्सिस दे आर अनअफेक्टेड. ओके, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ position of 001 peak in XRD pattern is dash degree 2 theta. ठीक है, एंड आपको बोला है कि लैम्डा इक्वल्स टू 1.515418 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं बिकॉज ऐसा क्वेश्चन अभी तक जैम में नहीं आया है. ठीक है, तो अगर ऐसा आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे. तो पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा कि क्या क्या दिया है इसमें. ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो आप थोड़ा देख लो पहले क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया है. पहले तो आपको पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू 1.5418. आपको 2 थीटा निकालना है. सो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला. ये तो आपको इतना तक तो आपको समझ में आ गया, 2d sin थीटा, राइट. सो आपको थीटा निकालना है, आपको लैम्डा दिया है, बट व्हाट इज मिसिंग हियर? मिसिंग इज दिस डी वैल्यू, राइट, क्योंकि इधर कहीं पर भी लैटिस स्पेसिंग या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये सब नहीं दिया है ना. सो आपको डी पहले कैलकुलेट करना होगा, राइट. अगर डी आपको पता चल गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस थीटा एंगल. अगर थीटा आपको मिल गया तो 2 थीटा तो इजी है, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना. तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? सो अगर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम बोला तो यू ऑल नो कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला. 1/d स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय c स्क्वायर, है ना. This is the formula for orthorhombic system. You all know. ठीक है, so कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, so you know कि position of 001 peak means the face is 001, right. अभी 001 अगर दे दिया so 0 by a square plus 0 by b square plus 1 by c square, right. So 1 by d square h scale equal to 1 by c square means dh scale equals to c, right, है ना. मतलब स्पेसिंग होगा इट्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ सी, राइट. अभी सी का तो लेंथ हम लोग को पता ही है. यू कैन सी हियर इफ यू सी द क्वेश्चन, यूनिट सेल ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक मिनरल वाज कंप्रेस्ड ड्यूरिंग द डिफॉर्मेशन फ्रॉम 5 एंगस्ट्रॉम टू 4.5 एंगस्ट्रॉम अलोंग सी एक्सिस, राइट. सो सी एक्सिस का पहले लेंथ था 5 एंगस्ट्रॉम एंड डिफॉर्मेशन के बाद लेंथ हो गया 4.5 एंगस्ट्रॉम, राइट. इतना तो हम लोग को समझ में आ गया क्वेश्चन देख के, है ना. सो फर्स्ट फॉर्मूला विल यूज lambda equals to 2d sin theta. Lambda is 1.5418 equals to 2 into d is equals to c का length, so means 5 sin theta. So इधर से we can calculate theta. अगर theta मिल गया तो we can also calculate 2 theta for 5 angstrom. अभी क्या बोला है कि during deformation c का जो length है it will now depress to 4.5 angstrom, right. So again we can use lambda equals to 2d sin theta. So 1.5418 equals to 2 into 4.5 sin theta. इधर से भी हम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है, ओके. इतना समझ में आया कि क्या किया हम लोग, क्या हम नहीं पता क्यों हम लोग क्या ये सब कर रहे हैं. कि लैम्डा हम लोग को पता है, डी हम लोगों को पता नहीं था, राइट. हम लोग को क्या क्या पता है, एच स्केल पता है कि कौन सा पीक मूव किया है ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन, दिस इज 001. सो फेस हम लोगों को पता है, राइट. हम लोगों को सी एक्सिस का पहले का लेंथ था
और बाद में क्या लेंथ हुआ डिकम्प्रेशन का, वो हम लोग को पता है, जस्ट इतना ही इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया है, राइट। और हम लोग को क्या निकालना है कि 2 थीटा का कितना, पहले तो क्वेश्चन समझ लो फिर सॉल्यूशन आएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो यू नो कि अगर लैम्डा थीटा ऐसा देता है तो विल सिंपली यूज लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा, ब्रैग्स लॉ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लैम्डा आपको पता है, थीटा आपको निकालना है, व्हिच इज मिसिंग कि d, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या किया कि d हम लोग निकल लिया। तो हम लोग को पता है कि इट्स ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, राइट। सो यू ऑल नो कि अब तो पता होना ही चाहिए कि 1/d स्क्वायर HL ऑर्थोरोम्बिक के लिए क्या होता है, द स्पेसिंग इक्वल्स टू समथिंग लाइक दैट, स्केल के पोजीशन में फेस का पोजीशन बैठा दिया 0 0 1, तो 0 अगर आ गया तो ये 2 एलिमिनेट हो गया, तो एक ही बचा c स्क्वायर। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, सो इट्स लुकिंग समथिंग लाइक दैट, डी स्केल मींस द स्पेसिंग इज इक्वल टू द c एक्सिस का लेंथ। क्योंकि डी स्केल इक्वल्स टू सी हम लोग कैलकुलेट किया उस फॉर्मूला से, इधर से हम लोग 2 थीटा निकल लिया। फिर अगर इस जो लाइक सपोज दिस इज 2 थीटा 1, दिस इज 2 थीटा 2, अगर हम लोग 2 थीटा 2 माइनस 2 थीटा 1 ये वैल्यू करेंगे, जो वैल्यू आएगा, सपोज इसमें x आया तो इसमें y आया, तो y माइनस x करके जो वैल्यू आएगा दिस विल बी द आंसर, ठीक है। वो हम लोगों को वही पूछा है कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ 0 0 1 इज डैश डिग्री 2 थीटा, ठीक है। सो जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, थोड़ा बाद में देख लेना, आई थिंक आपको याद में आ जाएगा, मैं तो एक बार बता दिया, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फॉर नाउ यू कैन आस्क मी। लास्ट पार्ट ओके, आई थिंक 2 थीटा 1 2 थीटा 2 इतना तक आपको आ गया, राइट, समझ में कि 2 थीटा 1 ओके। अभी आपको पूछा है कि आपको नहीं पूछा है कि 2 थीटा 1 और 2 थीटा लाइक 2 थीटा का जो वैल्यू निकला हम लोग को वो नहीं पूछा है, राइट। हम लोग को पूछा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शिफ्ट, राइट, कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। इट मींस लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शिफ्ट ऑफ द पोजीशन, इट मींस कि ये जो 2 थीटा हम लोग निकला, ठीक है, ये जो 2 थीटा हम लोग निकला कैलकुलेशन करके, इसका डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको डिफरेंस निकल दिया, माइनस कर दिया, इधर से इसको माइनस कर दिया, दिस 2 थीटा 2 से 2 थीटा 1 को माइनस कर दिया, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। जब ऐसा कुछ देगा कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ शिफ्ट, इट ऑलवेज मींस कि 2 थीटा का डिफरेंस, ठीक है, जो हम लोग को 2 थीटा निकला इधर से भी और इधर से, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, दैट्स इट, ओके। नाउ यू कैन कॉन्फिडेंटली गो टू जैम एग्जाम। आई थिंक इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते, बिकॉज दिस इज द मोस्ट लाइक go for exam at least किस टाइप में कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को, you can challenge, ठीक है। now if it's clear, now we'll go to some easy topic, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड हो गया अभी थोड़ा इजी टॉपिक में जाएंगे, which is Lewis पैरामीटर सबको पता है, एंड मिलर इंडिसेस, ठीक है। इसमें भी सबको थोड़ा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि भैया क्या होता है Lewis पैरामीटर, हम लोग तो नहीं आता है ये सब, हम लोग थोड़ा लाइक प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, तो आई थिंक अभी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो पहले तो समझ लो कि हम लोग एक फेस का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, और व्हाट इज Lewis पैरामीटर, व्हाट इज दिस। सो सपोज दिस इज द आवर एक्सिस, ठीक है, दिस इज आवर एक्सिस, दिस इज बी, हम लोग जनरली यूज करते हैं ABC, फाइन। तो हम लोग सबसे इजी से पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक फेस लिया व्हिच इज समथिंग लाइक दैट, ओके। सो यू ऑल नो कि इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया इफ जो फेस अपने ड्रॉ किया इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार में नहीं बता देंगे कि दिस इज 0 1 0 और दिस इज 1 0 0, दिस इज 1 1 0, ठीक है। हम लोग उसको टेक्निकली आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो हम लोग को टेक्निकली आना चाहिए कि इस फेस, सपोज दिस इज आई एम रिटन एज A, सो दिस A फेस का मिलर इंडिसेस या फिर फेस सिंबल क्या होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज दिस इज द ओरिजिन व्हिच इज मार्क्ड एज O, उससे हम लोग क्या करेंगे कि इससे
we can first of all we can see कि this face, this A face is only cutting along B axis, right? And this is parallel to A axis, parallel to C axis. Okay, I'm drawing the face like this so that it's parallel to C axis. Okay, you can see this is parallel to C axis, this is parallel to A axis. Only it's cutting B axis, right? So first you have to identify कि जो face हम लोग उसका face symbol निकलना चाहते हैं वो कौन सा axis को काट कर रहा है. So you can see it's only cutting B axis. Now know कि कितना unit में it's cutting B axis. So suppose मैंने आपको बताया कि this is 1 unit distance, okay, from origin. So this phase is 1 unit distance from origin. Okay. Now हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो वो लिखेंगे कि ऐसे जाएंगे A B C कि वो this phase A axis को कितना distance में काट कर रहा है. So we all see it's parallel to A axis, means ये कभी काट ही नहीं करेगा. So it means it's cutting A axis as infinity. Perfect. It's cutting B axis as 1 unit. I can write it here. So that's why 1 unit, it may be 2 unit, maybe 3 unit. Suppose मैंने इधर पकड़ लिया कि it's cutting at 1 unit. अभी it's cutting C axis as infinity because you can see it's parallel to C axis, means ये infinity में काट करेगा, मतलब कभी काट ही नहीं करेगा, right? So this is called Weiss parameter. Right? I think सबने सुना होगा Weiss parameter. So I think it's very clear for you कि what is Weiss parameter. So Weiss parameter is used to describe this intercept made by crystal face, right? कि ये क्रिस्टल फेस इंटरसेप्ट कितना हो रहा है कौन सा एक्सिस में, उसको हम लोग जो लिख रहे हैं ऐसा इस फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड Weiss पैरामीटर. ठीक है. नाउ अगर आपको Weiss पैरामीटर पता है तो हम लोग अभी कैसे मिलर इंडिसेस या फेस सिंबल निकलेंगे. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी, जस्ट कुछ नहीं करना है. अगर आपको इतना पता चल गया, ठीक है, इफ दिस इज क्लियर फॉर यू, देन हम लोग क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स 1 by infinity, 1 by 1, 1 by infinity. करेक्ट. जस्ट हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर दें, मतलब इसको उल्टा करके लिख दिया. फाइन. नाउ क्या मिला हम लोगों को? 1 by infinity means 0, 1 by 1 means 1, 1 by infinity means again 0, राइट? अभी हम लोग फेस को, एक क्रिस्टल फेस को जब लिखते हैं, ऑलवेज यूज दिस फर्स्ट ब्रैकेट. Okay, no other bracket you can use, only use first bracket and no comma will be there in between two values. Fine. So it will be 0, 1, 0. So this phase will be 0, 0, 1, 0. Okay. अभी हम अब लोग कभी देखते होंगे कि कभी कभी हम लोग लिखते हैं 0, 1, 0 ऐसा करके, कभी हम लोग लिखते हैं ऐसा करके, कभी हम लोग लिखते हैं ऐसा करके. ठीक है. So this first bracket indicate phase, second bracket indicate forms, like forms suppose सुना है cubic forms, dodecahedral forms, octahedral forms, हम लोग आएंगे अभी जब point groups बनेंगे. ठीक है. And this indicates zone. Okay, so what is zone? We'll come into that after that. ठीक है. So for now इतना याद रखो कि कैसे हम लोग एक Miller indices, and this is also called the Miller indices. Okay. And this is phase, or this is Miller, sorry, you can write it here, this is MI, means not Mumbai Indians, this is Miller indices. Okay. ठीक है. Now we'll try with the another axis. Now मैं और एक दिखाई तो फिर आप लोग खुद से ट्राई करना एक करने का. ठीक है. Suppose a face is cutting like sorry, हम लोग कैसे देंगे फेस को? ठीक है, नॉर्मली दे देते हैं, पहले तो कर देते हैं, फिर उसके बाद इसमें आएंगे. ठीक है. सपोज दिस अगेन, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C एक्सिस. फाइन. सो सपोज मैंने एक लिया कुछ फेस समथिंग लाइक दैट. ओके. इफ दिस इज अ फेस,
ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सपोज दिस फेस इज, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सा एक्सिस को कट करे. सब इफ दिस इज अ फेस, यू कैन ऑल सी कि सपोज इट्स कटिंग सी at 1 unit, it's cutting A, means this distance is half. Okay, and this distance is 1 again. Okay, so अगर मैंने इतना आपको बता दिया तो फिर कोई एक बताओ मेरे को कि इसका विस पैरामीटर हम लोग क्या लिखेंगे. एनीवन? मानस, ध्रुवो, शंखदीप, अभिषेक, एनीवन? 111 also. 111? ना 11 ना 221 होगा. नहीं, तो आप मेरे को एक काम करो, एक स्टेप बाय स्टेप बताओ कि विस पैरामीटर कितना होगा. मैंने आपको मिनरल इंडिसेस नहीं पूछा है अभी. विस पैरामीटर क्या होगा इसका? ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे कि मैंने बताया कि ए बी सी करके लिखेंगे ना, तो इट विल बी हाफ, राइट. जो हम लोग को इधर दिख रहे हैं हम लोग कोई सिर्फ लिखेंगे. ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट. कि ए को हाफ यूनिट में कट करे तो वी राइट हाफ, बी को 1 यूनिट में कट करे तो वी राइट 1, सी को 1 यूनिट में कट करे तो वी राइट 1. फाइन, just simply. So this is called Weiss parameter. Okay. अभी इसका अगर हम लोग मिलर इंडिसेस निकालना चाहते हैं तो जस्ट क्या जो मैं बताया कि सिंपल इसका रेसिप्रोकल कर दो तो विल गेट द मिलर इंडिसेस. सो इसका अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा? 2 1 1. सो दिस इज आवर मिलर इंडिसेस, राइट. इसको अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दे 2 1 1, so it's called the face. So this face symbol should be 2 1 1. ठीक है, as simple as that. So ऐसा स्टेप बाय, तो नहीं तो फास्ट में अगर करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करो, देखो कितना इजी हो गया. फाइन, ठीक है, बहुत सिंपल है. अभी और एक मैं आपको देता हूँ, खुद से कर लो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फिर मैंने सपोज आपको ये दे दिया. ठीक है, अभी मैं इस साइड में दिया. ठीक है, सपोज दिस इज अ, नहीं छोड़ो, फिर मैं थोड़ा इजी दे देता हूँ आपको. सपोज दिस इज द फेस. ठीक है, सो दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज ए. ठीक है, तो पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप करो. यू कैन सी इट्स कटिंग only 2 axis, right? You can see it's parallel to C. हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस फेस को एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, नाउ इफ इट टचेस C axis then we will also take a intercept for C axis as well. But as we can see, this face is parallel to C axis. That means it will cut C axis at infinity. Just this face, ठीक है, this face is only cutting negative side of B axis and positive side of A axis, right? I think it's understandable. So अगर ऐसा होता, अगर मैंने अभी आपको बता दिया कि this distance is 2 and this distance is 3/2 unit, okay? तो अभी आप लोग बताओ कि क्या लिखेंगे हम लोग. What will be the Weiss parameter? एक एक करके जाओ तो इजी हो जाएगा. बताओ, ध्रुवो, शंखदीप, मानस, अभिषेक. 3/2 -2 0. Okay, fine. 3/2 then -2. ठीक है, then in 0 नहीं, it will be infinity, right? Because it will never cut. 0 मतलब तो कट करके origin में, right? और infinity means ये कभी कट नहीं करेगा, it will be parallel, right? ठीक है, it will be infinity. I think it's understandable. So same, what will be मिलर इंडिसेस? इसको हम लोग उल्टा करके लिख दो, as simple as that. 2/3 -1/2 1/infinity, है ना. तो इसका भी कैलकुलेट कर लो, तो 2/3 -1/2 देन 0. तो मिलर इंडिसेस विल बी दिस. बट आप लोग कभी देखे हो कि ऐसा करके कुछ सिंबल की 2/3 -1/2 0, ऐसा कुछ फेस सिंबल आपने आई थिंक कभी नहीं देखा होगा. इफ देखा होगा तो इट्स रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि ऑलवेज फेस सिंबल शुड बी विद इन इंटीजर. फाइन. सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कॉमन फैक्टर होता है, इसका जो नीचे जो बैठता है, इसका लाइक 3 and 2 आर इन द बॉटम, राइट. तो इसका जो कॉमन फैक्टर है हम लोग उससे ये 3 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 and 2 वी कैन मल्टीप्लाई एज अ कॉमन इंटीजर विथ 6, राइट. सो वी कैन मल्टीप्लाई 6 into 2/3 minus
6 into half, comma 6 into 0, right? So it will be 4, comma minus 3, comma 0, right? है ना? अभी -3 तो हम लोग कभी नहीं यूज करते, तो इसके बदल में हम लोग क्या यूज करते हैं? नेगेटिव एक्सिस के लिए बार, राइट? 3 बार मीन्स -3 एंड 0. सो दिस विल बी द मिलर इंडिसेस. और इसको अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में ऐसा करके लिखे 4 3 बार 0, so this will be the phase symbol. So this means कि this phase will be 4 3 बार 0, है ना? तो पहले ट्राई करो कि ऐसा करने के. बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, ठीक है? यू कैन ऑल्सो से जब आप लोग मेरे को आंसर बता रहे हो तो गलती हो रहा है, राइट? सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको निकालो तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है? देखो कितना इजी है ना, द सिंपल प्रोसेस और कुछ नहीं. ये किसी और लोगों को दे दो, बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, भैया कैसा करते हैं कैसा, सब लोग गलत बताएगा, ठीक है? हम लोग जब क्रिस्टल क्लास में करते थे IIT में, तब भी हम लोग का गलत होता था, ठीक है? फिर हम लोग ऐसे डिस्कस करके करते थे तो इजी हो गया. देखो कितना इजी है अभी, राइट? फाइन. अभी और नहीं बताएंगे इसमें, अभी बाद में आप थोड़ा खुद से ट्राई कर लेना, तो आई थिंक और भी क्लियर हो जाए आपके लिए, ठीक है? नाउ अभी सपोज मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ अभी, ठीक है? सो अभी हम लोग जितना जितना भी कर रहे थे ना, मिलर इंडिसेस जितना निकल रहा था, हम लोग सब में एज्यूम कर लिए थे कि ABC दिस आर यूनिट एक्सिस, ओके? मींस इसका लेंथ यूनिट इज 1 सेंटीमीटर. सो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन देता है कि लेंथ ऑफ ABC एक्सिस इज 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल देता है कि लेंथ ऑफ ABC ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ओके? नाउ आपको बताया कि फेस HKL इज इंटरसेप्टिंग ABC एक्सिस एट 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है? देन what will be HKL वैल्यू, ठीक है? अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल देते हैं, वो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं होगा कि हम लोग ऐसे ड्रॉ करके फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, राइट? जो करेगा उसका बहुत टाइम चला जाएगा. तो हम लोग अभी एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिसके मदद से हम लोग जस्ट चुटकी में 2 सेकंड्स में इसको सॉल्व कर देंगे. लाइक 2 सेकंड नहीं, 5 सेकंड में, ठीक है? जस्ट लाइक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि इधर व्हाट वी कैन सी कि ABC का जो एक्सिस है, एक्सिस का लेंथ हम लोग को दिया है, और फेस उस एक्सिस को जो जो लेंथ में इंटरसेप्ट किया है, दिस आर गिवन. So write this formula down to solve this type of numericals shortly. Is HKL equals to A by IA, comma B by IB, comma C by IC. ठीक है? Means A by IA it will be the value of H, B by IB it will be the value of K, and C by IC this will be the value of L. Fine? As simple as that. अभी what is ABC? ABC means the axis का जो लेंथ दिया है, this is ABC. And IA means कि फेस A एक्सिस में जिस लेंथ में इंटरसेप्ट किया है. IB मीन्स वो जो फेस HKL वो B एक्सिस में जिस लेंथ में इंटरसेप्ट किया है, एंड C एक्सिस में जिस लेंथ पे इंटरसेप्ट किया है. सो यू कैन सी एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. कि फॉर एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन सी द A is 5, right? A is 5, sorry, 5 by intercept is 5, right? 5, comma B is 10 centimeter, so 10 by intercept of B is 10 centimeter as well, है ना? And C is 10 centimeter again, and intercept of C is 5 centimeter, right? So ये calculate करके जो आएगा, this will be the value for the face. Means the face symbol will be this. So it will be 1 1 2. So HKL will be 1 1 2. देखो कितना जल्दी अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है? As simple as that. ठीक है ना? Any questions?
ऐसा तभी कर पाओगे जब आपको लेंथ ऑफ एबीसी एक्सिस दे दिया होगा क्वेश्चन में, और आपका ये भी बता दिया होगा कि जो फेस आपको निकलना है वो ईच एक्सिस में किस लेंथ में इंटरसेप्ट कर रहा है, मींस आई ए, आई बी, आई सी. ओके, सो यू कैन इजिली कैलकुलेट एच स्केल. फाइन. ओके, अभी मैं आपको फिर से एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा फॉर्म का कौन सा फेस बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है. ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैम, गेट, एनी लाइक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ओके, सो अगर आप लोग क्यूब का बात करें तो क्यूब के लिए 100 फेस इज मोस्ट प्रोमिनेंट, ठीक है. सो 100 फेस इज ऑफ क्यूबिक फॉर्म. ओके, ऑक्टाहेड्रन is indicated by 111 face, ठीक है. Dodecahedron form is represent mainly by 110 face, ठीक है. ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है. 111 फेस दे दिया तो आपको समझ लेना होगा कि 111 मींस इट्स अ ऑक्टाहेड्रन फेस, ठीक है. देन ट्रेपेजोहेड्रन, मैं अभी बताऊंगा आपको कि ट्रेपेजो हम लोग कैसे स्टीरियोग्राफ में बहुत इजीली पहचान सकते हैं. नेक्स्ट टाइम जब क्रिस्टल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग उस टाइम बताएंगे. सो ट्रेपेजोहेड्रन इज माय आइडेंटिफाइड बाय दिस स्पेस HLL, मतलब समथिंग लाइक 122, 144, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा तो इट इंडिकेट्स ट्रेपेजोहेड्रल फेस. ओके, पिनाकॉइड, so this way I'm using the common form which is HLL. Okay, so pinacoid is identified by 001 face, and rhombohedron is identified by H0 H bar L, like 101 bar 2, ठीक है. ऐसा अगर आए तो it indicates कि rhombohedron, ठीक है. तो rhombohedron आपको इजीली पता चलेगा क्यों. You can also use the formula which I have written, H plus K plus I bar equals to 0, है ना. Means 1 plus 0 minus 1 equals to 0. You can see it's satisfied this formula, so it belongs to hexagonal system, ठीक है. And if it's look like that 1 0 1 plus 2, you can see H and H bar is same, you can write it as rhombohedron, ठीक है ना. Okay, okay, as simple as that. Any questions you can ask me, otherwise और भी थोड़ा बाकी रह गया, ठीक है. नेक्स्ट जैसे हम लोग क्रिस्टल सिस्टम चालू करेंगे, और दो चीजें वो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि व्हाट इज जोन, ठीक है. आई थिंक इट्स क्लियर फॉर एवरीवन. इफ यस देन वी विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक व्हिच इज जोन एक्सिस, ठीक है. और व्हाट इज जोन, इसमें बहुत लोगों को अभी तक एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है, भैया जोन क्या होता है, जोन एक्सिस क्या होता है, ठीक है. सब लोगों को पता है कि थर्ड ब्रैकेट मींस जोन्स, बट एक्चुअल जोन्स क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होता है. तो जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपको ऐसा कुछ दिया थर्ड ब्रैकेट में, तो इट इंडिकेट्स अ जोन. सो जोन इज नथिंग बट अ क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन. ओके, सो इस क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन को हम लोग जोन बोल के पहचानते हैं, ठीक है. तो वो कैसा होता है, सपोज मैंने एक हेक्सागोनल सिस्टम इधर ड्रॉ किया, ठीक है. अब इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जोन क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है. So this is suppose C axis and this is the other axis. We don't bother into it. So if this is the system, ठीक है ना. So what we'll see कि this is the C axis, this is vertical. Okay. So you can see कि each face का जो intercept है, ठीक है, like this is an intercept for these two face, right? This is the intercept for these two face. Again, this is the intercept for this face and this face, ठीक है. Similarly, this is an interface, this is an interface, this is another interface for these two face, right? So you can see this all intercepts are parallel to this crystallographic direction or this C axis, right? Understand? कि all face intercepts are parallel to this crystallographic direction. So that's why here C is called zone axis. Fine. So all intercept or all face intercept parallel to a particular
crystallographic direction is called zone axis. Okay, as simple as that. I think it's clear for everyone. So इसको हम लोग तब इसको अगर हम लोग अभी zone से लिखे, if I indicate is as a zone, then we'll use third bracket 0 0 1. Fine. So this is a zone concept, है ना? As simple as that. Okay. Now, अगर आपको ऐसा पूछता है कभी क्वेश्चन पे कि सपोज मैंने जो बताया कि दिस फेस इंटरसेप्ट इज पैरेलल टू सी एक्सिस, सो दिस इज जोन. अभी आपको बता दिया कि सपोज ए फेस आपको दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में कि भाई अभी आप बताओ कि इफ दिस फेस इज फॉलिंग विद इन दिस जोन, ठीक है. सो सपोज कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है. इफ अ क्रिस्टल फेस फॉर एग्जाम्पल HKL आपको दे दिया, फॉल विद इन अ जोन which is indicated as UVW, then it should satisfy this formula कि UH plus VK plus WL should be 0. ठीक है. If this condition satisfied, then only we can say कि yes, this phase belongs to this zone. Okay. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दे दिया, मैंने आपको बता दिया सपोज कि 2 2 1, डज इट फॉल विद इन दिस जोन 0 0 1 0, डज इट फॉल विद इन दिस जोन. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे. दिस इज HKL, दिस इज जोन, सो दिस इज UVW. सो 2 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 0 इक्वल्स टू कितना होगा, 0 plus 2 plus 0 means 2. So 2 not equals to 0 means it doesn't fall into this zone, right? समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जस्ट सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर लो. और इसलिए मैंने बताया कि मेरे साथ नोट करते करते जाओ, तो आपको अगर नहीं करोगे तो सब कुछ लगेगा दिमाग से ऊपर से चला गया, ठीक है. हमेशा नोट करके चलोगे तो अभी लगेगा कि हाँ सब कुछ निकल गया दिमाग से, बट बाद में जब देखोगे ना एक एक करके थोड़ा ठंडा दिमाग में, तो याद में आ जाएगा, ठीक है. बिकॉज इट्स सिंपल फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स, नथिंग एल्स, ठीक है. जस्ट सिंपल फॉर्मूला में बैठाओ और हो जाएगा. अभी अगर आपको पूछता है कि इन अ क्यूबिक सिस्टम, ओनली फॉर क्यूबिक सिस्टम मैं बता रहा हूं, ठीक है. इन अ क्यूबिक सिस्टम एंगल बिटवीन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा मत सोचो कि मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसा आउट ऑफ सिलेबस, नथिंग लाइक दैट, ठीक है. ये सब आता है इसलिए मैं कराता हूँ. बिटवीन द इन ए क्यूबिक सिस्टम द एंगल बिटवीन टू जोन, ठीक है, जोन एक्सिस और क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन जो ही बताओ, ठीक है, इज लाइक फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि इन ए क्यूबिक सिस्टम 1 0 0 जोन है एंड 0 1 0, इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो निकालो, ठीक है. वो कैसे निकलते हैं, सो यू हैव टू यूज दिस सिंपल फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू U1, you all know कि जोन हम लोग कैसे करते हैं, UVW से हम लोग डिनोट करते हैं. सो सपोज दिस इज U1 B1 W1 एंड दिस इज U2 V2 W2, दिस आर टू जोन एक्सिस, और उसके बीच में एंगल क्या होगा वो हम लोग को निकालना है फॉर ए क्यूबिक सिस्टम. तो हम लोग सिंपली ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है. U1 U2 प्लस V1 V2 प्लस W1 W2 बाई रूट ओवर U1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर क्रॉस U2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर. अगर आप इस फॉर्मूला में अभी सपोज आपको दो जोन दे दिया कि 1 0 0 और इसमें दे दिया 2 1 1, ठीक है. जस्ट सिंपल इस फॉर्मूला में बैठा दो, U1 U2 के जगह में बैठा दो इसको, फिर थीटा निकालो, दिस विल बी द एंगल. ओके, तो ऐसे हम लोग इसको निकाल. अभी के लिए सिर्फ नोट करते जाओ, बाद में देख लेना, आपको बहुत सिंपली याद में आ जाएगा, ठीक है. दैट्स इट. अभी हम लोग खत्म करेंगे बस एक सिंपल स्टीरियोग्राफ में आपको फेस आइडेंटिफिकेशन सिखा के आज का क्लास स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल सिस्टम से पॉइंट ग्रुप से चालू करेंगे, ठीक है ना. जस्ट फाइनल थिंग देख लो. अच्छा छोड़ो इसको, और भी
अभी थोड़ा जगह ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट कि स्टीरियोग्राफ में अगर आप लोगों को दे दे कि सपोज दिस इज अ स्टीरियोग्राफ, ठीक है, ऐसा अगर हो गया, सो दिस इज ए एक्सिस, नहीं ए एक्सिस, बी एक्सिस एंड सी एक्सिस इज वर्टिकल, राइट? C axis is vertical because we are saying this is a bird eye view, means हम लोग ऊपर से देख रहे हैं प्रोजेक्शन प्लेन को, that's why C axis को हम लोग नहीं देख पा रहे, जस्ट हॉरिजॉन्टल में जो है प्रोजेक्शन प्लेन में जस्ट वही हम लोग को दिख रहे हैं, जैसे कि स्टीरियोग्राफ में हम लोग दिखते हैं, राइट? A and B axis is given and C axis is vertical, so it's showing like a point, है ना? This is the final thing which we will cover today. And next class अगर हम लोग कल लेंगे तो anyone has any problem? अगर कल कब लेना है, कल या परसों देखते हैं, ठीक है, आई विल लेट यू नो, बट आई थिंक एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो क्रिस्टलोग्राफी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। तो ऐसा अगर आप लोगों को दे दिया, सो दिस इज सपोज पॉजिटिव ए एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव बी एक्सिस, दिस इज नेगेटिव बी एक्सिस, दिस इज नेगेटिव ए एक्सिस, फाइन, ओके। तो याद में रखना है बात कि अगर हम लोग कोई भी पॉइंट इधर लेंगे, इस लाइक पेरीफेरी के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो इसमें C लाइक L विल बी 0, राइट? मींस अगर कोई भी इधर पॉइंट लाइक फेस लेते हैं, सपोज मैंने ए पॉइंट में एक फेस लिया, सपोज इसका x नाम दिया, ठीक है, x लिया, ठीक है, तो x में इट्स बेस पेरीफेरी में कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो, इट शुड बी पैरेलल टू C एक्सिस। व्हाट डज इट मीन? कि इसमें एल का जो पोजीशन होगा वो 0 आएगा, ठीक है। एच के एल करके हम लोग तो एक फेस का नोटिफाई करते हैं ना, तो एल विल बी ऑलवेज 0 इफ द पॉइंट फॉल्स विद इन दिस पेरीफेरी, फाइन, इज इट क्लियर? क्योंकि पेरीफेरी में अगर पड़ेगा तो इट ऑलवेज बी पैरेलल टू सी एक्सिस, ओके। नाउ अगर मैं एक्स के साथ ही चालू करता हूं तो यू कैन सी एक्स इज फॉलिंग between A axis and B axis, so it will be HK0, okay. अगर मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया तो इसका क्या होगा फिर? it is only like cutting B axis, right? And it's not like belonging to A axis, right? It's only falling within this axis, right? So it will be the H position will be 0, the B axis will be K, right? And मैंने क्या बताया कि अगर पेरीफेरी को छोड़ के वो अंदर कहीं पर भी बैठेगा तो C will be present, means it will cut C axis, तो it will be 0 K L, okay. Similarly अगर हम लोग इस फेस में देखते हैं दिस पॉइंट को, ठीक है, so what we can see, it's only cutting A axis, right? So this will be H, it's not cutting B axis anymore, 0, एंड पेरीफेरी से अंदर है, सो इट विल बी H0L, ओके। अगर इधर का इसका पोजीशन पड़ता है, सो व्हाट विल इट बी? तो मैंने बता दिया कि पेरीफेरी में होगा तो C विल बी 0, राइट? बट अभी तो पेरीफेरी में नहीं है, इसके अंदर है, सो C का कुछ वैल्यू होगा, सो सपोज इट विल बी L, है ना। अभी इट्स फॉलिंग बिटवीन A एंड B एक्सिस बट नेगेटिव, सो इट विल बी H बार K बार L, फाइन। अगर इधर पड़ता कुछ पॉइंट तो व्हाट विल इट बी? It will be like, okay, so it will be कितना होगा? It will only cutting the negative B axis, right? It's not cutting A axis anymore because it's on like falling on the B axis. It will be 0 K bar L. अगर वो इधर होता so it will be कितना होगा? 0 K bar 0, क्योंकि मैंने बताया कि पेरीफेरी में C एक्सिस का पैरेलल हो जाता है, सो इट विल बी 0। अभी आप बताओ कि ए पॉइंट में अगर लेते हैं तो कितना होगा? एनीवन वांट्स टू ट्राई? गलत होगा तब भी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, इस पॉइंट में एक करके हम लोग छोड़ देंगे आज के लिए। एनीवन? शंखदीप, ध्रुवो, मानस, अभिषेक, बोलो बोलो। क्या? एच बार के एल, लेट मी चेक, एच बार के एल, दैट्स गुड, सही बताया, क्योंकि
it's on negative of a axis, so it will be a. It's in between a and b, so k, there will be a value for k. So as it is on positive side of b, so it will be k, and it's inner of the periphery, so it will be l. So the face will be h bar kl. So अगर इस side में पढ़ता तो anyone like except Sankadeep, Manas, Rubo, anyone wants to try? Obhisek, what will be the value of this face? HKL. HKL, perfect. देखो अभी कितना इजी हो गया, ठीक है, कितना इजी हम लोग अभी कोई भी अगर फेस बताता हम कोई भी बता सकते हो, ठीक है, any face. Okay, so that's it for today. I think we should stop because it's already 10:06. It's dinner time already. Okay, so thanks everyone for joining. Any questions, any doubt, just ask me.